Hello and welcome back to another exciting video of class 3 EVS, and today we are going to see the next topic of our ongoing lesson, that is air, water and weather. In our previous videos or previous sessions we have learnt about air, we have learnt about water, air pollution, what are the measures that we can take to prevent air pollution, to prevent water pollution, states of matter we have seen. Okay, so now in this session we are going to learn about water cycle, but before water cycle we had learned rainwater harvesting also. Rainwater harvesting means what? How can we save the water which is coming from the rain? So storing rainwater by collecting it for our future use is called rainwater harvesting. Here you can see rain is coming, means the raindrops are there which are falling from the clouds. They are being stored here in this tank and that can be used for future use like washing, cleaning and other things we can use it. And when the harmful substances get mixed with the water, they cause water pollution. So we can avoid, we can prevent that by not putting oil, grease, medicines and any other chemicals into water bodies. Then we had learned 3 R's. Which 3 R's are those? Reduce, reuse and recycle. रिड्यूस मीन्स व्हाट? रिड्यूस मीन्स कम करो, जितना आप यूज कर रहे हो उससे आपको क्या करना चाहिए? कम करिएगा. अगर आपको बाइक धोने के लिए पाइप की जरूरत है तो उसके बजाय आप क्या करिएगा? बकेट या मग का इस्तेमाल करके पानी पोर करिएगा आपके व्हीकल के लिए. रीयूज द वाटर मतलब कुछ जैसे कि व्हेन यू वॉश वेजिटेबल्स, द रिमेनिंग वाटर हम क्या कर देते? फेंक देते. सो दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर योर गार्डनिंग पर्पजेस. लाइक इफ यू आर वॉशिंग योर व्हीकल, सो वॉश इट इन एरिया वेयर वहां से पानी कहा जाए, एक पेड़ की तरफ पानी जाए. तो इस तरह से यू हैव टू रीयूज द वाटर. देन रिसाइकल वाटर. रिसाइकल मीन्स व्हाट? collect your used water, then filter or process it and reuse it. उसको वापस से reuse करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. Okay, so these were 3 R's. So now we are going to learn about water cycle. So the main thing that we have learnt is this is clouds. So cloud से क्या होता है? Rainfall होता है. Rainfall से that water goes to some of the water goes underground, okay, and other water flows and it goes to with the streams, then using rivers, lakes, it goes to oceans. So this is the simple life cycle of water cycle. So what are the terms that are used here? So number 1 is evaporation, number 2 is a transpiration, number 3 is a condensation, number 4 is a precipitation, number 5 is a collection. So what are these terms? ये evaporation मतलब क्या, transpiration मतलब क्या, condensation मतलब क्या, precipitation मतलब क्या, collection मतलब क्या, ये चीजें हम क्या करने वाले अब विस्तार से डिटेल में पढ़ने वाले. So when water is collected, जहां पे water collect हुआ होता है, suppose water is stored in the water bodies like lakes, or suppose it is flowing through rivers, or it is in the seas or in ocean. Now we have seen who is the source of heat, unlimited source of energy, which is our sun. And when sun rays fall on our body, or when our sun rays fall on that water, because of the heat of that sun rays, water turns into water vapor. Okay, water turns into water vapor. आप क्या करिएगा? For to check this, keep a vessel on a gas. आप एक गैस के ऊपर एक बर्तन रखिएगा, उसमें पानी रखिएगा, उसको उबालिएगा. So by the time you will observe that water starts boiling, when it get hits, वो क्या होने का? गर्म होने के बाद में boil हो जाता है, उबल जाता है, and water steams comes out, water vapors वहां से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे और धीरे धीरे water क्या हो जाएगा उसमें का? कम कम होने लगेगा. So the process of water changing into water vapor due to heat is called evaporation. What it is called?
evaporation. What is the spelling of evaporation? EVAPORATION. Here you can check. This is our sun and this is the stored water, and because of the sunlight water turns into water vapor. It is going upside. यहां से आप चेक कर सकते हो. It is going upside means water का क्या हो रहा है, वहां से water changing into water vapor. So the process of water changing into water vapor due to heat is called evaporation. So evaporation सभी जगह पे take place. It takes place everywhere. It takes place in the ocean, in rivers, in the sea, in the ocean, और in our kitchen also. हम पानी उबालते तो उसमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है ना. तो कभी कभी सर्दी होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें झंडुआ मिक्स करके भाप लेते हैं. तो दैट भाप इज द वेपर्स. ओके, so that water vapors come out from the water because of heat, HEAT, heat. So the process of water changing into water vapor due to heat is called evaporation. Understood? Okay. Now condensation. Now आपने देखा कि वाटर वेपर क्या हो रहा है, ऊपर 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 जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं. Why it is going upside? Because the changes in the temperature, the environmental condition की वजह से, climatic condition की वजह से क्या होता है, वो change temperature में कम ज्यादा होता है. So water vapor क्या होते हैं, हवा में ऊपर 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 जाते. ओके, so as water vapor moves upside means higher into the air, और ऊपर जाने के बाद में कैसा है, ऊपर का टेम्परेचर एयर का क्या है, कम है. जो ग्राउंड पे टेम्परेचर है उससे ऊपर का टेम्परेचर क्या है, कम है. सो इट कूल्स. वो क्या होता है, ऊपर जाने के बाद में ये वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, स्लोली वो क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, वो ठंडा होना शुरू हो जाते हैं. एंड व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स cools, they turns into droplets of water. जो ये ऊपर जाने वाली जो वेपर्स है, ये धीरे 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 क्या हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदों की तरह बन जाते हैं. एंड वो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास में आना शुरू होते हैं. एंड व्हेन दे गेट टुगेदर दे फॉर्म्स क्लाउड्स. CLOUDS, क्लाउड्स. क्लाउड मींस ढग. ये बादल जो बनते हैं ना, बादल जो बनते हैं जिसे ढग कहते हैं या फिर बादल कहते हैं, दीज आर नथिंग बट द वाटर वेपर्स, दे आर टुगेदर. ओके, जो वाटर वेपर होते हैं, जो ऊपर जाने के बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हो जाता है, सो दे गेट कूल. ओके, सो इट कूल्स एंड टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. और जो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं. सो दे फॉर्म अ बिग drop of vapor, that is the cloud. So the change of a water vapor into water droplet is called condensation. Here you can see, यहां से इवेपोरेशन से क्या हो रहा है, ऊपर चला गया वाटर वेपर, यहां से ऊपर चला गया, एंड नाउ इट कूल्स. और यहां पे क्या हो रहा है, वो छोटी 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 बूंदे यहां पे बन रही है. मींस वो इतनी भी बड़ी नहीं होती है, दे आर नॉट हेवी इनफ कि वो नीचे आ जाए. एकदम स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. वो ऐसा नहीं कि अभी वाटर ड्रॉपलेट हो गया तो धड़ 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 नीचे वापस आ जाएगा. नो, दे आर सो टाइनी. ओके, सो व्हेन दे गेट टुगेदर दे फॉर्म अ क्लाउड. अ ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, दे फॉर्म अ clouds. So here you can see a cloud forming process has started here. That is the third process which is called condensation. And transpiration मतलब क्या, water vapor से ऊपर जाना. Okay, that is the condensation. Understood? Change of water vapor into water droplets is called condensation. CONDENSATION is the spelling of condensation. Now next one, precipitation. Precipitation means क्या होता है, when these droplets are coming together and because of the wind, because of the air, they again come together. वो क्या होते हैं, एक दूसरे फिर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं. and when they come together, they join together and becomes heavier.
and becomes heavier. अगर सब लोग एक साथ में आ गए तो they join together and they becomes heavier, and when they becomes heavier, एक पानी का बड़ा सा बूंद बन जाता है. It becomes one drop of water and it falls back on our earth in the form of rain. Evaporation, पानी की भाप बन गई, वाटर वेपर. कंडेंसेशन, वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट टू वाटर ड्रॉप, water droplet to rain is called precipitation. So inside these clouds, these water droplets join together, becomes heavier, वजन खुद का बढ़ जाता है, and that is why they cannot withstand in the air and they fall back on the earth in the form of rain. So this change from clouds to rain is called precipitation. Understood? Process of water to water vapor, evaporation, water vapor to water droplet, condensation, water droplets, मतलब ये clouds to rain, precipitation. Understood? Now, so जो पानी ऊपर से आएगा precipitation से बारिश पड़ेगी तो water, this rain water again fills your rivers, ponds, lakes, and it again evaporates. Okay, again it condensation starts, again precipitation starts. So this process of turning water vapor into water droplets to clouds, clouds to rain, rain to again water vapors, this process is called water cycle. पानी के भाप से वापस पानी बन जाना, that process is called water cycle. So here the process of water turning into water vapor and then back to water is called water cycle. Understood? Nice. Now we have learnt about air, water, water cycle also we have learned, rainwater harvesting also have learnt. Now we are going to learn about weather. We have learnt movement of the earth, we have learnt rotation, we have learnt revolution. How much time earth takes to complete one rotation? 24 hours. What is the time to complete one revolution? 365 days and 1/4 day, that is 6 hours. Then because of the revolution, what happens? Seasons, we get leap year. What happens because of rotation? We get day and night. We have learned that, remember, don't forget it. So weather is also connected with that topic. How it is connected? See here, now here you can see clouds are there. This is blowing here, means it's windy. This is raining, means it's rainy season. It's here thunderstorm, मतलब वो बादल गरज रहे, फिर यहाँ से और बारिश हो रही है, यहाँ पे snowfall हो रहा है. So these are different weathers that we have seen all across the world. So weather मतलब क्या होता है? Weather means एक पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर जगह पे जो वहां का टेम्परेचर हो, जो वहां की नरमी हो, जो वहां की ठंडी हो, वो क्या होता है? वहां का वेदर होता है. वी हैव सीन अर्थ इज अराउंड. ओके, अर्थ इज अराउंड. और अर्थ के बाहर क्या है? या फिर अर्थ पानी में ऐसे डुबो के रखी हुई? नो, अर्थ इज इन एयर. वो क्या है? एयर में, हवा में है. सो अर्थ इज सराउंडेड विद एयर. ओके, एंड दैट सराउंडेड एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एक मोटा मोटा अगर हम बोलेंगे तो जो अपने अर्थ के आउटसाइड एरिया है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. So the layer of earth which is surrounding the earth is called atmosphere. Remember the spelling atmosphere, ATMOSPHERE, atmosphere. So अपने अर्थ के बाहर क्या है? वहां पे भी एक अर्थ हवा है. So that air surrounding of earth is called atmosphere. Now ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर ये जो एटमॉस्फेयर है, ये कैसे? ये घंटे को हर घंटे चेंज होता है, हर डे बाय डे इट चेंजेस. एंड व्हाई इट चेंजेस? बिकॉज ऑफ द सन्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, रिवॉल्यूशन. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड दैट इज व्हाई दीज कंडीशंस आर चेंजिंग बाय द टाइम. सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, okay, atmospheric condition of a particular place at particular time is called weather.
मतलब वहां का हवा कैसा है, पानी कैसा है, वहां का टेम्परेचर कितना है, ये हर घंटा चेंज होता है. जस्ट डू वन थिंग, जस्ट गो ऑन ए टेरेस ऑफ योर होम एंड स्टैंड देयर. आप अगर आपके हाउस के टेरेस पे जाएंगे, सुबह में वहां पे खड़े रहेंगे, तो सुबह सुबह में यू विल फील दैट एक ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी सी धूप लग रही है. देन बाय द टाइम क्या हो जाएगा, हवा भी थोड़ी कम लग रही है, धूप ज्यादा लग रही है, दोपहर में तो बहुत ज्यादा धूप लगेगी, फिर शाम में और धूप कम हो रही है, फिर और हवा आ रही है, फिर कूल ब्रीज की तरह एक वहां का आपको एटमॉस्फेयर लग रहा है. सो व्हाई इट इज चेंजिंग, बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. क्या हो रहा है, वहां का पर्टिकुलर जगह का क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहा है. एटमॉस्फेयर मतलब क्या, द सराउंडिंग एयर. एटमॉस्फेयर मतलब क्या, द सराउंडिंग एयर एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर. और अगर किसी प्लेस का पर्टिकुलर हमेशा कैसे रहेगा, अगर समझो सोनाथ का टेम्परेचर कैसा होता है, हमेशा हॉट ही रहता है, तो दैट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब क्या है, वहां का किस तरह से है वो हम अगर बताएंगे, सो दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशन. बट वेदर मीन्स व्हाट, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर टाइम. मतलब उस जगह पे उस वक्त जो वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, दैट विल बी द वेदर. लाइक दोपहर में अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होगा, हॉट, बट इन द इवनिंग इट विल बी कोल्ड. शाम में हमें ठंड भी लगती है, दोपहर में हमें गर्मी भी होती है. सो दैट इज आवर वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. एंड चेंज इन वेदर, और जब हम क्या हो जाएगा, वहां से वेदर चेंज होगा, तो वेदर की वजह से क्या होता है, वी गेट क्लाउड्स ऑल्सो, वी गेट रेन, वी गेट विंड. वी हैव सीन, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा तो फिर बारिश हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दैट दीज ऑल थिंग्स हैपन. Now here one a boy is standing and just observe, this is the position of a sun when it's a morning, because of the sunrise. Okay, that time we feel a little bit heat only. Sun rays are not that much straight, they are slanting, so उतना टेम्परेचर नहीं होता है. बट बाय द टाइम जैसे मॉर्निंग बढ़ते जाएगा, योर सन रेज स्टार्ट्स कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स यू. ओके, वो जो स्लांटिंग है, जो एंगल है, वो कम हो रहा है, तो आपको हीट ज्यादा लगेगा. ओके, एंड व्हेन इन द आफ्टरनून यू विल चेक सन इज अपने ऊपर ही होता है, इट फील्स लाइक इट इज ऑन आवर हेड. ओके, सो डायरेक्टली सन रेज आर फॉलिंग ऑन अस, दैट इज व्हाई वी फील हॉट, और जो भी हीट होता है दोपहर में ज्यादा होता है. देन बाय द टाइम अगेन दैट एंगल चेंजेस, सो इवनिंग में और वो स्लांटिंग हो जाती है, सो हीट कम होती है, एंड सनसेट के वक्त में और भी कम जाती है, और भी कम हो जाती है. सो दिस इज द वेदरिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन पर्टिकुलर प्लेस, सो वहां से क्या हो जाएगा, सन जैसे जैसे गुजरता जाएगा, वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा. सो जब हमें क्या होता है, हमारे सर के ऊपर समझो आके बैठा अपना सन. सन मीन्स सूर्य देवता. सो दैट डेज आर कॉल्ड सनी डेज. सनी डेज मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी हॉट एंड ब्राइट. उसमें क्या होता है, एकदम धूप के दिन होते, समर, यस, एकदम हॉट, और इतना हॉट होता है कि वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग दोज डेज. हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं. यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 4 to 5 liters of water every day, because during summer we sweat a lot. हमारी बॉडी से क्या होता है, स्वेट मतलब पसीना निकलता रहता है. दैट इज वाई टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेट वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. But during those sunny days, during those summer time, mornings and evenings are cooler as compared to your afternoon session, because sun rays are not directly coming to you, they are in slanting. Angle क्या होता है, चेंज होता है, they are slanting. But afternoon time is the hottest because sun rays are directly falling on earth. So दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बिना चप्पल के तो आप चल ही नहीं पाओगे, बिकॉज बहुत तेज धूप की वजह से आवर ग्राउंड सरफेस हॉट हो जाता है. ओके, सो when you are moving out in the sunny days, you should apply sunscreen, protect yourself using sunglasses, or keep umbrella with you, or the best way, don't go out.
दोपहर के वक्त सनी डेज में बाहर जाओ मत, घर में ही आराम करो। ओके, सो दीज आर सनी डेज। नेक्स्ट वन इज अ क्लाउडी डेज। क्लाउडी डेज मतलब क्या होता है, जैसे कि विंटर मॉनसून का समय हो जाए, मॉनसून का, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, उसमें क्या होता है, क्लाउड्स मतलब पूरे बादल छाए होते, पूरे ढग जमा हुए होते। ओके, एंड ऑन सच डेज हमें कभी कभी क्या होता है, सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं होते, सन appears to be hidden, उसमें क्या होता है, सन क्या होता है, appears to be hidden because of the layer of clouds, वो क्या करते, जो भी सनरेज आ रहे हैं वो सनरेज को क्या करते, जमीन तक आने नहीं देते, दे cover the sun and that is why it appears that sun is hidden behind the clouds and these days are cooler, बारिश के वक्त आपने देखा होगा एकदम ठंडा 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 रहता है। ओके, एंड सम क्लाउडी डेज क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मींस इट ब्रिंग्स अस रेन एंड सच डेज आर कॉल्ड रेनी डेज एंड व्हेन दिस हैपेंस ड्यूरिंग क्लाउडी सीजन, दैट इज मॉनसून सीजन। सो during that what we wear raincoats, we carry umbrellas। okay, जब रेनकोट और अम्ब्रेला क्यों, बारिश से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सनी डेज हॉट, क्लाउडी डेज कूलर विथ रेन, अंडरस्टूड। नाउ फॉगी डेज क्या होता है, कभी कभी व्हेन थिक लेयर ऑफ जो वाटर ड्रॉपलेट्स मैंने बताया, जैसे कि ऊपर जाते वक्त इवेपोरेशन के वक्त क्या होता है, ऊपर जाते हैं कंडेंसेशन, ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। ओके, बट वहां पे ऊपर बादल बन जाते हैं, कभी कभी बिकॉज ऑफ द एयर, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस, they come close to the ground surface during morning time and it appears that ये पूरे बादल जमीन पे आ गए, ऐसा लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, ठंड के दिन में सुबह सुबह देखते हो तो पूरे बादल छाए जैसा दिखता है। फिर thick clouds are formed with every small droplets of water in the air, they come close to the earth surface, और अपने कहां पे, अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं या फिर समुद्र के बाजू में आते हैं, they comes close to the surface and it is called fog, it is called fog and such days are called foggy days। ये ठंड के दिन में ज्यादा पाया जाते हैं, सुबह सुबह में, इन मॉर्निंग में ये ज्यादा पाए जाते हैं foggy days, understood? okay, now windy days। okay, wind means what, the moving air is called wind, right? moving air is called wind। So when wind blows slowly and it's cooler, जो हवा बह रही है और जो ठंडी भी होती है, that is called breeze। what it is called, it is called breeze। and कभी कभी क्या होता है, these wind blows with strong pressure, when strong winds that are coming with the lightning, thunder, रेन, कभी कभी क्या होता है, बारिश आती है, कभी कभी स्नोफॉल होता है, और कभी कभी स्टॉर्म हेल्स भी आ जाते हैं, मतलब गारा, बर्फ के जैसे बर्फ के गोले पड़ते हैं। सो दैट इज हेलिंग ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड हेलिंग। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट आर कमिंग विद लाइटनिंग, थंडर, रेन और स्नो, इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स बादल कहते हैं। ओके, सो इट इज कॉल्ड स्टॉर्म and storm cause a lot of damage and these are the windy days। and when these windy days are, ये समर और मानसून के बीच में वाला एरिया होता है, जहां पे ना क्या होता है, बहुत जोर से हवा बहती है, और ये जोर से बहने वाली हवा, the wind with the strong force, that is called storm and it accompanies, मतलब इसके साथ में क्या होता है, कड़कड़ कड़कड़ बिजलियां भी चमकती है। ओके, इट इज कॉल्ड लाइटनिंग। ओके, वहां से कभी कभी क्या होती है, रेन भी मतलब बारिश भी आ जाता है। सो दीज आर विंडी डेज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द वेरी टॉप our previous topic only, that is season, that we have already learned। but what is the season? Season means a period of a year which is marked by the changes in the weather। मतलब उसमें वेदर में चेंज हो जाता है, वहां के क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज हो जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। दैट इज कॉल्ड सीजन। अ सीजन इज पीरियड ऑफ द ईयर इन विच वेदर कंडीशन चेंजेस। वहां पे क्या होता है, वेदर
चेंज हो जाता है. सो वी हैव 5 सीजन्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन. सो व्हिच आर दोस? फर्स्ट वन इज समर. समर मीन्स व्हाट? इट्स वेरी हॉट, बहुत धूप होती है. Okay, we should use umbrellas, we should not go out during those days. Okay, winter, बड़ी एकदम ठंडी, it's so cold during winter. अभी winter ही चल रहा है. Okay, monsoon, कड़कड़ा, thunderstorm, lightning, rains, hails, okay, snow. So it rains during monsoon or rainy season. Monsoon को हम rainy season में कैसे हैं. Then autumn. Autumn means क्या होता है? इस सीजन में क्या होता है? Trees shed their leaves during autumn. इसमें क्या होता है? Trees उनके leaves जो होते हैं, पत्ते छोड़ देते हैं, उन्हें गिरा देते हैं. आफ्टर समर के बाद में ऑटम आता है. समर जैसे जैसे खत्म होते आएगा ना, उस वक्त ये ऑटम आ जाता है. और उसके बाद में आ जाता है स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग मीन्स फ्लावर ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग. यहां पे क्या होता है? फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करना स्टार्ट होते रहते हैं. यहां से नए नए फूल, नए नए लीव्स बनना शुरू हो जाता है ऑन ट्रीज. अंडरस्टूड? सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस सीजन? क्या होता है सीजन की वजह से? क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. हम जो कपड़े अब हम स्वेटर पहन रहे हैं, कैन वी वेयर द सेम स्वेटर ड्यूरिंग द समर? नो, इट विल फील लाइक अ कुकर. हम नहीं पहन सकते. ओके, वी ईट डिफरेंट फूड. हम ड्यूरिंग समर वी ईट आइसक्रीम अ लॉट, वी ड्रिंक जूसेस, ठंडा ठंडा कोल्ड जो भी होगा, हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम ज्यादा पीते. बट इन सेम विंटर में हम नहीं पी सकते, या फिर आइसक्रीम नहीं खा सकते, सर्दी वगैरह हो जाएगा. ओके, सो वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एंड वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. Okay, so with change in season, our food and clothes also changes. Same. Then in summer we wear cotton clothes. Cotton के clothes क्या होते हैं? अच्छे होते हैं. It keep our body cool. Then during cold days and during summer days we love to eat cold things like ice cream or shakes वगैरह वगैरह. We drink more water during those hot days. But in winter we wear woolen clothes because it is hot. Okay, we drink lot of teas, coffee, then soups. और यहाँ पे क्या करते हैं? आइसक्रीम वगैरह हम खाना कमी कर सकते. So during rainy season हम सेम तरह के कपड़े नहीं यूज कर सकते. We use raincoats, we carry umbrellas, and during बारिश के वक्त हमें क्या खाना पसंद आता है? पकोड़ाज, फ्राइज, जो भी तला हुआ होता है ना, वो खाना हमें पसंद आ जाता है. राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम आवर द लेसन एयर, water and weather. I hope you have understood the topic. By this we have finished this lesson. You have to read the lesson once again, okay? Complete the exercise, complete the workbook also. Send me your exercises via WhatsApp. Send me your workbook exercises also via WhatsApp. We'll meet in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Have a nice day.